Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum to all students of first year. How are you all? Hopefully you all will be fine there with the best health. And do pray to everyone, for everyone, for the best health. Of course, you know very well what's going on in our country. So Walaikum salam. It's mean, thank you, Ira Zafar, for your quick reply. And Rishna Kamal, Lubaina. Now I can realize that you are listening me, and my voice and my video both are clear. Anyhow, I want to talk. First of all, I want to talk about your test. Your test day will be Friday, I think. I think it's confirmed. Okay. There is no video. Alhamdulillah, I'm also fine. We're really under depression because of COVID-19. You know very well that the situation is going to be worse day by day. And Allah Ta'ala ही है जो महफूज रख सकते हैं हमें. Condition is so worse, going to be worse day by day. You know very well. So take best care of yourself, okay, and do prayer for all of us because we are coming here at SNC for you people, and just learn more and more because we are coming here for you people. ज्यादा पढ़ना चाहिए ना फिर तो आप लोगों को, क्योंकि हम लोग आ रहे हैं आप लोगों के लिए इस वजह से. एनी हाउ अभी स्लाइड जो है वो अपलोड हो रही है. मीनवाइल में आप लोगों को टेस्ट के मतलब बता दो बच्चों. टेस्ट तो वैसे आपके डेली बेसिस पर ही हो रहे हैं ना, क्योंकि इंग्लिश के सब्जेक्ट का नहीं हो रहा तो बाकी सब्जेक्ट्स के आपके हो रहे होंगे, ठीक है. तो उसमें क्या चीज है कि बाकी सब्जेक्ट्स के जब आपके हो रहे हैं तो आप लोगों को आइडिया हो गया होगा, नाउ हाउ होगी कि किस तरह से करने हैं, ठीक है. अभी ऐसा है कि अभी कोई इस तरह की अभी जो है मुझे नहीं पता चला कि किस तरह से जो है वो चलेगी. एक मिनट में स्लाइड्स का कह दूं कि अपलोड हो गई हैं. ठीक है जी. अच्छा जी, हम बात कर रहे थे टेस्ट की, कि टेस्ट के मुतालिक जो है of because our struggles. हाँ, गुड हो गई है, शो हो गई है. मैंने कहा मैं वो सरगनी जाके करते हैं ना अपलोड, वहां से यहाँ करीब नहीं होते, मतलब अपने सिस्टम से जाके करनी होती है. फैकल्टी ऑफिस से याद है ना, तो हम यहाँ कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे हुए होते हैं, इस वजह से. राफिया नाज, जो आपका क्वेश्चन है, जो आपने कहा है कि टाइम बहुत ज़्यादा है, कम कर दें. बेटा, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट.
I will not talk to anyone about the timing because we are here from 8 to 4 o'clock. ठीक है? If you have any problem and students have any problem regarding the net problems and other issues, you have to talk with the coordinator. Okay? Madam Zubaida यहाँ पर होती हैं, आप उनको कह सकते हैं. ठीक है? अगर आप लोगों को कोई problems हैं, जो भी से regarded problems हैं, because we take just they issue a test schedule and all the schedule, and we are here to follow that one schedule. Okay, तो अगर आपको कोई भी issues हैं इससे तो ओके ठीक है. अच्छा जी, टेस्ट के बारे में मैं आप लोगों को बता रही थी बच्चों के टेस्ट किस तरह से आप लोगों को आएगा. वैसे तो आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, मैं डेली बेसिस पर जो है आप लोगों को वो बताती हूँ कि लॉन्ग क्वेश्चंस कौन कौन से हैं. फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का कौन सा है? ऐसे का है 20 मार्क्स विद आउटलाइंस. विद आउटलाइंस नहीं, विद आउटलाइंस. ठीक है, आउटलाइंस के साथ आप लोगों ने करना है. फर्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड वन क्वेश्चन इज अबाउट about job application. Okay, job application also contains 20 marks. Third question is about comprehension passage, also 20 marks. Fourth question is about about fourth question is about definitions, about grammar. Okay, four questions are there, and fifth one is translating to English. Okay, and Lubaina, I think Lubaina or the other students, I just want to convey a message about the essay which I have issue on the Google online classes. Okay, you have told me yesterday that please ma'am update the essay village life versus city life. तो वो जो है उस पर ऐसे गूगल पर मैंने जो है वो डाउनलोड कर दिया है. तो you can see on Google Classroom. Okay, now I want to talk about the Shalamar e-learning management system. ठीक है, अभी आप लोग टेस्ट देना शुरू हो गए हैं उस पे, आई थिंक शालामार ई लर्निंग मैनेजमेंट पे. ठीक है, तो उसमें आप लोगों ने क्या करना है कि शालामार ई लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पे आप जो भी टेस्ट कर रहे हैं, दे रहे हैं, उसको अपने अपने माइंड में रखना है. ठीक है, और जो भी टाइमिंग है बच्चों, वहाँ पे टाइम बहुत स्ट्रिक्टली जो है वो शो हो रहा होता है सारी टाइमिंग. ठीक है, उस टाइम में आप लोग जब उस रूम में एंटर हो जाते हैं, उसमें जब आप अटेम्प्ट करते हैं तो आपको फौरन पता चलता जाता है कि क्या जवाब है क्या नहीं है. ठीक है, अब उसमें क्या है, मुझे जो अभी फिलहाल प्रॉब्लम्स हैं, और ऑफ कोर्स आप लोगों की तरफ से भी प्रॉब्लम्स हैं, वो ये हैं कि इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द नाउन. ठीक है, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेफिनेशंस ऑफ नाउन. ओके, होंगी सारी की सारी ठीक ही. ठीक है, लेकिन उसमें क्या होता है कि हम लोगों ने आंसर लिखना होता है. ठीक है, आंसर लिखना होता है जो कि उससे मैच होना चाहिए जो आप लोग लिखेंगे. शॉर्ट क्वेश्चंस की मैं बात कर रही हूँ. ठीक है, अब अगर वो वाला डेफिनेशन जो मैंने लिखी हुई है वहां पर, और वो वाली डेफिनेशन, देयर इज डिफरेंस बिटवीन द डेफिनेशन विच आई हैव रिटन एंड द डेफिनेशन you have right on the SLM SLEM. Okay, so agar there is difference between them, so you got 0 marks. Are you getting my point? ठीक है, तो उसके लिए अब मैं वही सोल्यूशन निकालना चाह रही हूँ कि क्या सोल्यूशन हो इस तरह से, क्योंकि वो कंप्यूटर मार्किंग भी होनी है और वो सारा का कुछ कंप्यूटराइज्ड ही है. ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट समझ आ रही है बच्चों आप लोगों को कि किस तरह से मैं आप लोगों को समझाना चाह रही हूँ ये सारी बात. कि देखें, वहां पर लिखा होता है शॉर्ट क्वेश्चंस. शॉर्ट क्वेश्चंस में मैं गई, वहां पर लिखा होता है क्वेश्चन अटेम्प्ट करें. फॉर एग्जांपल अगर मैं वहां पे लिखती हूँ राइट द डेफिनेशन ऑफ द नाउन. ठीक है, मैं नीचे लिख देती हूँ द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस और एनीथिंग एल्स इज कॉल्ड द नेम ऑफ I have submitted in the morning. Okay, is called noun. ठीक है, अब ये मैंने डेफिनेशन लिख दिया. अगर आप लोग किसी और तरह से डेफिनेशन शुरू करते हैं तो आप लोगों को 0 मिल जाएगा वहां पर. ठीक है, तो इसलिए मैं कह रही थी कि डेफिनेशन जो हैं वो आप एक से याद कर लें. ठीक है, बेहतर यही है, मैं देखूंगी वहां पर आप किस तरह से जो है मैंने सिस्टम सारा वहां पर करना है, क्योंकि आपके तो अभी आप मुझे बताएंगे कि आपने कल टेस्ट जो दिया है वो ऑब्जेक्टिव टाइप की था आप लोगों का या सब्जेक्टिव टाइप था? ऑब्जेक्टिव टाइप ही होगा आई थिंक.
निम्रा का क्वेश्चन पता नहीं क्या है, स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं काफ़ी इसमें। मुझे बता दें क्या है तो फिर मैं आपको बता देती हूँ कि क्या है और किस तरह से आप लोगों ने करना है। ठीक है, एनी हाउ अभी आप जो है सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप ही था, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप ही था, ओके, ऑब्जेक्टिव टाइप ही था, ठीक हो गया। ऑब्जेक्टिव टाइप ही था, यही मैं कहना चाह रही हूँ कि हमारे तो इंग्लिश के सारे जो है वो सब्जेक्टिव है ना, तो इसलिए मैं देखूंगी। लेकिन अभी फर्स्ट आप लोगों का लेसन जो है ना, फर्स्ट जो टेस्ट है वो मैं भी ऑब्जेक्टिव टाइप ले लेती हूँ, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप लेकिन शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। उसमें मैं सिर्फ एक ही टॉपिक रखती हूँ और वो टॉपिक होगा आप लोगों का पार्ट्स ऑफ स्पीच का, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने बहुत अच्छे से यहाँ से स्टूडेंट्स को करवाए भी थे, इफ यू रिमेम्बर, कि मैंने आप लोगों को बोर्ड पे भी आप लोगों का टेस्ट लिया था और आप लोगों की असाइनमेंट्स भी मैंने कंप्लीट करवाई थी पार्ट्स ऑफ स्पीच की, ठीक है। आई थिंक पार्ट्स ऑफ स्पीच इज वेरी इजी टॉपिक फॉर टेस्ट नंबर 1। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, टेस्ट अनाउंसमेंट मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि आप लोगों को बच्चों को मुश्किल ना हो, ठीक है। ऐसे इतना लंबा किस तरह से टाइप करेंगे बच्चों, अब आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है कि ऐसे किस तरह से टाइप करेंगे, ठीक है। मैं इसके लिए क्या कर सकती हूँ, अब आप मुझे बता दें कि ऑनलाइन क्लास है तो ऑनलाइन अब भाई हम अगर आई एम नॉट गोइंग टू बी अलाउ यू दैट जस्ट write the essay and take the picture and give just send me the picture. How can it possible students? वो तो 100% पता है कि ये बात गलत है, ठीक है, इस तरह से नहीं हो सकता। गेटिंग माई पॉइंट कि आप लोग पहले से लिखे हुए हैं वो, मैं 5 एसेस का सपोज कि मैं 5 एसेस का आपको टेस्ट दे देती हूँ, 5 के 5 एसेस आप लिख के रख लेंगे, उसके बाद जो है टिक 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 करके मुझे, मैं एक ऐसे आपको दे देती हूँ करने के लिए, उसकी वहीं से आप पिक्चर लेंगे, आपके लिए क्या मुश्किल है मुझे सेंड करना। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो इसलिए वो ये सारी चीजें हो सकती, आप लोगों को अपनी रिटन प्रैक्टिस ही ज्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ, टाइमिंग थोड़ा सा जो है वो मैं ज्यादा कर दूंगी उसके लिए, लेकिन अब इतनी ज्यादा भी नहीं हो सकती कि पास बुक रखी हुई है आपने और साथ साथ आप जो है वो टाइप करते जा रहे हैं, जी एक हाथ इधर है एक नजर इधर है, तो वो भी नहीं बच्चों इस तरह से हो सकता। लो भाई ना, आपने क्या बात की है कि मैडम ऐसे नहीं हो सकता कि सबमिट करवा दें गूगल क्लासरूम पे, बच्चे वहां पर टाइमिंग नहीं होती, ठीक है, इस तरह से नहीं होता कि 1 आवर, वहां पर डेट मेंशन है, आवर्स मेंशन नहीं है गूगल क्लासरूम पे, ठीक है, तो ऐसे नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हाँ, बिल्कुल निम्रा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ऐसा ही है कि इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि मैंने डिफरेंट डेफिनेशन लिखेंगे आप, क्योंकि इंग्लिश में तो ज़ाहिर सी बात है डिफरेंट डेफिनेशंस हो जाती हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं, इस तरह की सारी चीज़ें, वो एमसीक्यूज अगर बने हुए होंगे तो उसमें क्या होगा कि एक टिक करना होगा आपने, ठीक है, तो वो आंसर मैं बता दूंगी, ठीक है। तो इस तरह से, लेकिन शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में जब आप आते हैं तो फिर वहां पर देखना पड़ेगा कि क्या करना है, किस तरह से करना है, फिर ये है कि जो डेफिनेशन, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि आप बिल्कुल क्रैमिंग ना करें इस तरह से, कि जी जो 2 लाइनों की टेप, मैं चाह रही हूँ कि ज्यादा क्रिएटिविटी हो, ठीक है, एग्जाम्पल्स जो है वो 3 3 आप लोग लिखें, तो वो सारा कुछ अब मुझे भी साथ पहले टेस्ट लिखना पड़ेगा आप लोगों के ठीक है, ये सारी चीजें एनी हाउ देखते हैं उसको भी, लेकिन ये है कि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही टेस्ट होगा, वो किस तरह से भी हो, चाहे वो आपको डेफिनेशन लिखने के लिए आए, चाहे आप लोगों का एमसीक्यू टाइप हो, चाहे आपका जो है वो कंप्लीट पार्ट्स ऑफ स्पीच विद 5 एग्जाम्पल्स याद करें आप लोग, ठीक है। अब यही है, अगर एग्जाम्पल मैं डिफरेंट लिख देती हूँ आप लोग डिफरेंट लिख देते हैं तो वो भी सारा जो है वो गड़बड़ हो जाएगी वहां पे, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर क्या है कि हमें यहाँ पर भी करना है शाला हमारे ई लर्निंग पर, ठीक है। एनी हाउ कोई बात नहीं, अभी है दिन हमारे पास फ्राइडे के लिए, तो अभी जो है आज मैं बैठ के अभी लेक्चर कंप्लीट होता है 1 o'clock, तो 1 o'clock टू 2 o'clock जो है वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, लंच ब्रेक होगा, नमाज ब्रेक होगी, उसके बाद जो है मैं इंशाल्लाह बैठ के देखती हूँ, आई विल just convey a message, okay, तो you don't need not worry about that, आप परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है कि भाई हम लोग क्या करेंगे किस तरह से करेंगे, ओके। तो इसलिए बस अभी जो है आप लोग सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो है वो तैयारी करें, ठीक है, कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है हम लोगों ने करना है, क्लियर, उसमें परेशान होने की बात नहीं है, लेकिन क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो हर तरह से आप लोगों ने करना है, करना ही करना है, उसमें रियायत कोई नहीं है आप लोगों को,
ठीक है, ये बात होगी टेस्ट की। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, रिजल्ट भी आपको साथ साथ ही उसमें पता चलते जाते हैं। शुरू में थोड़ी सी होगी प्रॉब्लम, जाहिर सी बात है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप यूज हो जाएंगे। जैसे ऑनलाइन क्लासेस के आप यूज हो गए, इस तरह से उनके भी हो जाएंगे। रोनिका, आप ठीक कह रही है कि मैं गूगल क्लासरूम पे डेफिनेशन विद एग्जांपल्स भेज दूं, लेकिन देखें अकॉर्डिंग टू ईएचएस एग्जामिनेशन अगर मैं सिर्फ वही डेफिनेशन आप लोगों को भेज देती हूँ, आप लोग भी वही याद कर लेते हैं, एग्जाम्पल एक जैसी होंगी, हर चीज एक जैसी होगी, आप वही याद करेंगे ना फिर डेफिनेटली। तो मुझे बताएं कि वो किस तरह से, फिर वो तो बिल्कुल चीटिंग होगी ना फिर तो, क्योंकि डेफिनेशंस है ना, इस वजह से। एनी हाउ, डोंट यू वरी अबाउट द टॉपिक कि किस तरह से क्वेश्चन आएगा, क्या होगा। आई विल शेयर एवरीथिंग विद यू इंशाल्लाह टुडे और मोर देन टुमारो। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कल तक आपको शेयर कर दूंगी कि किस तरह से टेस्ट आएगा, क्या आएगा। तो अभी इसको फिलहाल छोड़ दें, अभी हम नर्सिंग एज अ प्रोफेशन की तरफ आ जाते हैं। ठीक है जी, नर्सिंग एज अ प्रोफेशन इज द मोस्ट 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 एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसे अकॉर्डिंग द एग्जामिनेशन ऑफ यूएचएस एग्जामिनेशन। ठीक है जी, इसमें आप लोगों ने जो है पकड़ हर तरह से जो है ये नर्सिंग एज अ प्रोफेशन करना ही करना है। ठीक है, नर्सिंग एज अ प्रोफेशन आप लोगों को ऐसे होना चाहिए कि कोई सोया वॉब भी उठाए ना आप लोगों को, बल्कि डेफिनेशंस भी ऐसी आनी चाहिए पार्ट्स ऑफ स्पीच की, सुनाना शुरू कर नर्सिंग एज अ प्रोफेशन आप लोगों की फिंगर टिप्स पे होना चाहिए नर्सिंग एज अ प्रोफेशन। गेटिंग माई पॉइंट बच्चों? ठीक है, अभी पहले जिन बच्चों ने याद नहीं किया हुआ, किसी असाइनमेंट मिसिंग है या जो भी चीज है, इसमें जो है आप लोगों ने कोटेशंस ऐड करनी है, कोटेशंस भी बहुत अच्छी होनी चाहिए आप लोगों की। ठीक है, नर्सिंग एज अ प्रोफेशन में फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में भी आप लोगों ने काफी ज्यादा एडिशन करना है, बिकॉज वी वांट टू गेट मोर एंड मोर मार्क्स इन यूएचएस एग्जामिनेशन। क्लियर टू एवरीवन स्टूडेंट्स? ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आप लोगों को मैंने तैयारी करवानी है यूएचएस एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वो इंशाल्लाह ताला हम लोग करते हैं, वो तो करेंगे भी आप लोग, जाहिर सी बात है, कहीं पे जा तो रहे नहीं है ना, आप जा रहे हैं कहीं पे ना, इंशाल्लाह हम जा रहे हैं। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें बच्चों, टेस्ट देने में, टेस्ट को बिल्कुल भी आप परेशान ना हो। ठीक है, मैं यहाँ पर हूँ ना आपकी आसानी के लिए, तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह आप दुआ करें, अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करें हमारे लिए, तो कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आएगा उसका भी। एक बात ये हो गई, दूसरा ये कि कोविड-19 इज स्प्रेडिंग डे बाय डे वेरी फास्टली, रेपिडेडली। आप लोग जो हैं बहुत ज्यादा अपने भी एहतियात करें बच्चों, अपने घर वालों की भी करें, हम लोगों के लिए भी दुआ करें, हमारे घर वालों के लिए भी आप लोग दुआ करें। ठीक है, तो इसलिए इससे लड़ना क्या है वो, डरना नहीं लड़ना है। अल्लाह माफ करे, तो बस बहुत डर लगता है, बट यू आर सेफ इफ यू आर स्टेइंग एट होम। जी बिल्कुल, ऐसे भी वर्ड टू वर्ड ही याद करना होगा आप लोगों को। ठीक है रुशना, मैंने आपको कहा है ना, अभी नो मोर टॉक अबाउट टेस्ट, आई विल टेल यू एवरीथिंग। ठीक है, अभी थर्सडे को भी मेरा लेक्चर है आपका 2 to 3 o'clock। ठीक है, तो 2 से 3 तक जो है टेस्ट ले लेंगे हम लोग। टेस्ट तो फ्राइडे को होगा, थर्सडे से 2 से 3 हम क्लास लेंगे ना, उसमें भी मैं आप लोगों को बता दूंगी किस तरह से टेस्ट आएगा और क्या आएगा। एनी हाउ, हम लोग शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। नर्सिंग एज अ प्रोफेशन, वुमेन हैव एंटर्ड आउटलाइन फर्स्ट। ठीक है जी, आउटलाइन जो है हम पहले पढ़ना शुरू करते हैं। नर्सिंग एज अ प्रोफेशन, अभी तो स्लाइड काफी ओके। वुमेन हैव एंटर्ड इनटू एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, कहते हैं औरतें जो है हर फील्ड में जिंदगी के दाखिल हो चुकी हैं। नर्सिंग इज एन इम्पोर्टेंट प्रोफेशन फॉर देम, और नर्सिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रोफेशन है उनके लिए। ठीक है, ये चीजें नोबल प्रोफेशन कहते हैं, ये नोबल प्रोफेशन है। डायरेक्शन थोड़ी चेंज कर लेते हैं। ठीक है जी, इट इज अ नोबल प्रोफेशन, नोबल प्रोफेशन है। इट सूट्स द साइकोलॉजी ऑफ वुमेन, ये औरतों की भी साइकोलॉजी के मुताबिक सूट करता है उन्हें, बिकॉज अगर विमेन जो है वो बेस्ट नर्स होती हैं या मेल बेस्ट नर्स होते हैं? फीमेल
बेस्ट नर्स हैं या मेल बेस्ट नर्स हैं, क्योंकि यहाँ पर तो लिखा हुआ है कि सूट्स द प्रोफेशन साइकोलॉजी ऑफ वीमेन बिकॉज वीमेन आर काइंड एंड सिंपैथेटिक बाय नेचर, क्योंकि ये सिंपैथेटिक होती हैं बाय नेचर। ड्रेस्ड इन वाइट यूनिफॉर्म होता है इनका, दे लुक वेरी एक्टिव एंड स्मार्ट, बहुत ज्यादा एक्टिव लगती हैं और स्मार्ट लगती हैं, एंड इम्प्रेस एवरीवन, हर किसी को इम्प्रेस करती हैं। ठीक है। दे आर ग्रेट लवर्स ऑफ मैनकाइंड की ग्रेट लवर होती हैं। दे बिलीव इन सर्विसेज टू ह्यूमैनिटी, और ह्यूमैनिटी की सर्विस पे, इंसानियत की खिदमत करना जो है उस पर यकीन रखते हैं कि हाँ जी हमें इंसानियत की खिदमत ही करनी चाहिए। क्लियर टू एवरीवन? समझ आ रही है सब स्टूडेंट्स को कि नहीं? आ ही रही होगी, पहले भी पढ़ा ही हुआ है हम लोगों ने, कौन सा फर्स्ट टाइम ही पढ़े हैं यहाँ पर। ऐसा ही है ना कि पहले पढ़ा हुआ कि नहीं पढ़ा हुआ स्टूडेंट्स? पढ़ा हुआ है हम लोगों ने। तो अभी रिवाइज भी हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। There was a time when women were regarded as inferior creature। कहते हैं एक वक्त था कि औरतें जो है वो अदना मखलूक समझा जाता था इनको। लेस देन स्टेटस, इंफीरियर का मतलब मैंने कल भी आप लोगों को बताया था, लेस देन इन स्टेटस, अदना मखलूक समझा जाता था। बट रिसेंटली, लेकिन हाल ही में, दे हैव प्रूव्ड, उन्होंने बता दिया है देयर वर्थ, अपनी ताकत को बता दिया है इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, हर जिंदगी के मोड़ में। दे आर गेटिंग एजुकेशन लाइक मैन, और वो बिल्कुल आदमियों की तरह ही एजुकेशन ले रही हैं। दे आर डिस्कार्डेड पर्दा, उन्होंने पर्दा करना बंद कर दिया है। एंड हैव एंटर्ड इनटू द ऑफिस एंड वर्क विद मैन, और ऑफिस में दाखिल हो गई हैं और मर्दों के शाना बिशाना काम कर रही हैं। ठीक है। अब डिस्कार्डेड पर्दा का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही दे डिस्कार्डेड पर्दा, कि वो बिल्कुल ही पर्दा जो है उन्होंने खत्म ही कर दिया है। ये देखें अल्लाह ताला ने फिर से पर्दा करवा दिया ना खवातीन को। ठीक है। डिस्कार्डेड पर्दा का मतलब ये है कि वो अब घरों में महसूर होके नहीं रह गई हैं। ठीक है। दे आर नॉट सराउंडेड इन देयर हाउसेस, दे जस्ट केम आउट फ्रॉम द हाउसेस। ओके। दे हैव रियलाइज्ड, कहते हैं वो महसूस करती हैं, दैट वीमेन कैन ऑल्सो परफॉर्म देयर जॉब्स इवन आउटसाइड देयर होम्स। कहते हैं कि औरतों ने ये करवा दिया है, बावर करवा दिया है कि खवातीन जो हैं वो परफॉर्म कर सकती हैं अपनी जॉब्स को, यहाँ तक कि अपने घरों से बाहर भी। ओके। दे आर बिकमिंग टीचर्स, वो टीचर्स बन रही हैं, नर्सेज बन रही हैं, डॉक्टर्स बन रही हैं, एयर होस्टर्स बन रही हैं, एंड इवन आउटसाइड देयर होम्स, और यहाँ तक कि अपने घरों से भी बाहर आ रही हैं। दे आर बिकमिंग टीचर्स, वो टीचर्स बन गई हैं, नर्सेज, डॉक्टर, एयर होस्टर्स एंड स्टेनोस। ठीक है। स्टेनोग्राफर होते हैं, वो टाइपिंग करती हैं। नो डाउट दे हैव प्रूव्ड देयर एबिलिटी इन एवरी ब्रांच ऑफ ह्यूमन लाइफ, और हर ह्यूमन लाइफ में जो है ब्रांच में उन्होंने अपना लोहा मनवा लिया है। बट दे आर स्पेशली सुटेबल फॉर मेडिकल प्रोफेशन, और जो मेडिकल प्रोफेशन को भी सूट करता है। दे कैन बिकम गुड डॉक्टर्स एंड नर्सेज, कहते हैं यहाँ तक कि वो गुड नर्सेज भी बन सकती हैं और गुड डॉक्टर्स भी बन गई हैं। आवर कंट्री इज वोफुली इन नीड ऑफ देम, कहते हैं हमारे तो जो है मुल्क को बहुत ज्यादा इसकी जरूरत है। किसकी बहुत ज्यादा जरूरत है? नर्सेज की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमने क्या कहा है कि एक बेड पर कितनी होनी चाहिए? एक अगर पेशेंट बेड पर लेटा हुआ, मुझे इसका जवाब दें जल्दी से, कि एक पेशेंट जो बेड पर लेटा हुआ है उसके नर्सेज कितनी होनी चाहिए, उसके साथ नर्सेज कितनी होनी चाहिए? और अगर जो है एक पेशेंट, मतलब एक बेड पर क्या एक नर्स होनी चाहिए, या एक नर्स कितने बेड्स के लिए होनी चाहिए? इंटरनेशनल इसकी रेशो क्या है और पाकिस्तान में इसकी क्या रेशो चल रही है? इसका जवाब दें जरा मुझे, बिकॉज नाउ यू आर गोइंग टू बिकम अ नर्स। इन मोस्ट ऑफ द विलेज हॉस्पिटल्स, कहते हैं बहुत ज्यादा जो है गांव के जो हॉस्पिटल्स हैं, वी डोंट हैव इनफ ऑफ देम, हमारे पास ज्यादा नहीं है। इन देयर एब्सेंस अ लेडी डॉक्टर कैन नॉट परफॉर्म हर ड्यूटीज एफिशिएंटली, कहते हैं हमारे गांव साइड पर जो जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वो तादाद में भी कम हैं, और वहां पर सिर्फ एक लेडी डॉक्टर मौजूद होती है जो कि सारी अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं कर सकती सही से। शी कैन नॉट अटेंड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट्स, वो लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट्स को नहीं अटेंड कर सकती। अगेन इन टाइम ऑफ वॉर, के जब टाइम का वॉर का टाइम था, आज सीरियसली नहीं थी, तो इनकी बहुत ज्यादा सख्त जरूरत थी। A lady
doctor cannot look after a large number of wounded soldiers and military staff carefully. कहते हैं एक लेडी डॉक्टर जो होती है वो कभी भी लुक आफ्टर नहीं कर सकती, देखभाल नहीं कर सकती बहुत ज्यादा मरीजों की, खास तौर पर जो जख्मी सिपाही होते हैं और मिलिट्री स्टाफ होता है उसका केयरफुली काम नहीं कर सकती। इट इज अ नर्स, और कहते हैं नर्स ही होती है हु कैन गिव अ हेल्पिंग हैंड, जो कि हमें खास मदद वाला हाथ देती है टू द लेडी डॉक्टर्स को, एंड दस लुक आफ्टर द वाउंडेड सोल्जर्स, और यहाँ तक कि जख्मी सिपाहियों की भी वो लुक आफ्टर करती है, देखभाल करती है विद ग्रेट केयर, अटेंशन, बहुत ज्यादा अटेंशन से, ग्रेट केयर एंड अटेंशन, बहुत ज्यादा केयर देती है, उनको तवज्जो देती है अपनी, और उनके जख्मी फौजियों को वो बिल्कुल ठीक करती है। क्लियर टू एवरीवन? हाँ जी, रेशो का मैं पूछ रही थी आप लोगों से, क्या कहते हैं मैम 4 to 5। हाँ, एक बेड पर एक नर्स होनी चाहिए। निदा कह रही हैं कि एक बेड पर एक नर्स होनी चाहिए, ठीक है। लुबाइना बतूल कह रही है कि 4 to 5। ये 4 to 5 की मुझे समझ नहीं है कि 4 to 5 क्या, 4 बेड्स 5 नर्सिस कि 5 नर्सिस 4 बेड 1:2 होनी चाहिए, पेशेंट टू नर्स रेशो। अच्छा, पेशेंट एक हो तो 2 नर्सिस, patient to nurse कि 2 nurses for 1 patient, 1 nurse for 2 patient, 1 nurse for 2 patient। okay, move the slide please। okay, move कर देते हैं मैम। in this essay everything and every line is written about lady nurses, so what Ali Hamza you have to write for the male nurse, you can write very well and you are very good in English, you can write and send me, just make the assignment and send me, I will help you and I will guide you। okay, हाँ ठीक है, आई एग्री विद यू के तमाम लाइंस जो हैं वो अबाउट फीमेल नर्सेज, तो मेल नर्स जो है अब आगे है ना बनने, तो मेल नर्स बनाए जरा, ये जबकि जब फीमेल नर्सेज होती थी मेल नर्स नहीं होते थे 1 nurse for 1 bed, ठीक है जी, 1 nurse हो गया फॉर 1 बेड, ठीक है जी। सिर्फ निम्रा देख के पढ़ रही है, उसको पता है कि स्लाइड मूव करनी है स्लाइड को कि नहीं मूव करना है, ठीक है। अच्छा जी, पाकिस्तान में क्या रेशो चल रही है? अगर 1 नर्स जो है वो 1 पेशेंट के लिए है तो पाकिस्तान में क्या रेशो चल रही है, एक मुझे ये बताएं, और ये भी बताएं कि अगर पाकिस्तान में क्या होगा सच्ची, यहाँ पर तो पूरी वार्ड में एक नर्स होती है, रियली पूरी वार्ड में एक नर्स होती है, तभी तो वो फिर बेचारी ऐसे अपना बिहेव रखती है सबके साथ। एनी हाउ, कोई बात नहीं, ऐसा ही है, ठीक है। अच्छा जी, नर्सिंग इज द नोबलेस्ट प्रोफेशन, कहते हैं नर्सिंग जो है वो नोबलेस्ट प्रोफेशन है। ड्रेस्ड इन वाइट यूनिफॉर्म, कहते हैं वाइट यूनिफॉर्म में जब ये ड्रेसअप होती हैं नर्सिज, एंड क्लोथ कैप, सर पे कोट कपड़े की टोपी होती हैं, ऑन दियर हैंड्स क्लोथ कैप ऑन दियर हैंड्स एंड कैप, क्लोथ कैप ऑन दियर हैंड्स, उनके हाथ में टोपी होती है। दे लुक वेरी स्मार्ट, तो बहुत स्मार्ट लगती हैं। दे एडमिनिस्टर मेडिसिन टू द पेशेंट, वो पेशेंट को जो है वो मेडिसिन देती हैं। दे मूव अबाउट द वार्ड्स टू द हॉस्पिटल्स, और वो हॉस्पिटल्स की वार्ड्स में जाती हैं। वेयर पेशेंट्स आर लुकिंग फॉरवर्ड, लुकिंग फॉरवर्ड का मतलब होता है वेटिंग फॉर, ठीक है, कि वो इंतजार कर रहे होते हैं, पेशेंट जो है उनका इंतजार कर रहे होते हैं टू देयर अराइवल, कि वो कब आएंगी, कब हमें मेडिसिन देंगी, कब हमारा जो है वो सारे का सारा आके काम करेंगी, नर्सिस जो होती हैं, ठीक है। यहाँ पर नर्सिस सारे टाइम पे याद रहती हैं वैसे मेरे ख्याल से तो। अच्छा, सारे जागे ही हुए हो हाँ जी, इंटरनेशनल जो सिनेरियो है उसमें, इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं उसमें तो एक बेड पर एक नर्स होनी चाहिए। सोचो जरा, पाकिस्तान में अगर ऐसे हो जाए, पाकिस्तान में तो इतनी जगह ही नहीं होती वैसे कि एक पेशेंट के लिए एक नर्स हो। यहाँ पर तो मैं कहती हूँ अगर 3 बेड के लिए एक नर्स भी दे दे तो नर्स भी खुश, पेशेंट भी खुश, क्योंकि पेशेंट को अच्छा सा ट्रीट करेंगी ना, वो जाहिर सी बात है ओवर बर्डन हुई होंगी, इधर उधर जाएंगी आएंगी बेचारी, क्या क्या करेंगी, तो वो फिर मुश्किल वाली बात ही हो जाती है ना, ठीक है। दिन में 50 पेशेंट्स को देखती हैं, ओए होए 50 पेशेंट भी देखती है बेचारी एक ही वक्त में, मुश्किल वाली बात ही हो गई है ये तो एनी हाउ, नर्सिंग वॉज फाउंडेड बाय फ्लोरेंस नाइटिंगेल। देखें जी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का यहाँ पर बहुत
थोड़ा सा दिया गया है, मैंने जब आपको असाइनमेंट भी कंप्लीट करवाई थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में। अच्छा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में आप लोगों ने कंप्लीट ऐसे लिख के असाइनमेंट भी बनानी है, ठीक है। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का मटेरियल भी आप लोगों ने कलेक्ट कर लें, अच्छी अच्छी लाइन जो है वो कलेक्ट कर लें आप लोग, ओके। गेटिंग माई पॉइंट। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जो है नर्सिंग एज अ प्रोफेशन में आप लोगों ने बहुत ज्यादा लिखना है। लाइक अगर हाफ ऐसे आप नर्सिंग एज अ प्रोफेशन लिख रहे हैं, ठीक है, तो हाफ ऐसे ही जो है आप लोगों ने ये लिखना है। समझ आ रही है आप लोगों के कि हाफ ऐसे अगर आपने लिखा है नर्सिंग एज अ प्रोफेशन, तो हाफ ही आप लोग आगे से जो वो है वो लिखेंगे फ्लोरेंस नाइटिंगेल का लिखेंगे। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल की भी जो है आप लोगों ने कोटेशंस भी ऐड करनी है अबाउट फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो इसको सारे को जो है बड़ा अच्छा से ऐसे बनाएं आप लोग अपने लिए, ठीक है। ओके जी। नर्सिंग वाज फाउंडेड बाय फ्लोरेंस नाइटिंगेल। कहते हैं नर्सिंग जो है वो फाउंड किया था, इसने बुनियाद रखी थी किसने? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। शी वर्क डे एंड नाइट फॉर वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड गेव द प्रोफेशन एन ऑनरेबल लुक। कहते हैं शी वर्क डे एंड नाइट, उसने दिन रात काम किया फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों की बेहबूद के लिए, एंड गेव द प्रोफेशन एन ऑनरेबल लुक, और फिर इस तरह से उसने प्रोफेशन को एक ऑनरेबल लुक दी। ये बच्चों जो इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं ना, लाइंस होती हैं, इनको अच्छे तरीके से याद किया करें और फिर जहन में भी रखा करें। ये नहीं कि याद किया और ठीक है बस आ गया, अब हम अपने वर्ड्स में लिख देंगे। देखिए कितनी खूबसूरत लाइन लिखी हुई है इसमें, लाइंस बहुत खूबसूरत है, ठीक है। शी वर्क डे एंड नाइट, उसने, और वेरी सिंपल, वेरी इजी एंड वेरी इंप्रेसिव। शी वर्क डे एंड नाइट, उसने दिन रात काम किया फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों की बेहबूद के लिए, एंड गेव द प्रोफेशन एन ऑनरेबल लुक। देखें, एंड गेव द प्रोफेशन एन ऑनरेबल लुक, और बहुत ज्यादा इज्जत वाली निगाह दी किसको? इस प्रोफेशन को, के लोग इसको इज्जत की निगाह से देखने लगे। क्लियर टू एवरीवन? समझ आ रही है आप लोगों को बच्चों? ठीक है, ओके। वेयर वाज इट? दे एडमिनिस्टर्ड मेडिसिन्स to the patient? No. Did her profession to be godly? कहते हैं उसने बिल्कुल इस तरह से प्रोफेशन को लिया जिस तरह के खुदा बनकर मदद करता है कोई किसी की। शी वॉज टेंडर हार्टेड, वो बहुत नरम दिल थी। काइंड हार्टेड भी लिख सकते हैं आप, टेंडर हार्टेड भी लिख सकते हैं। इन द क्रीमियन वॉर में शी कंसोल्डेड अ लार्ज आर्मी ऑफ वाउंडेड, उसने बहुत ज्यादा जो है कंसोल्डेड अ लार्ज आर्मी ऑफ वाउंडेड, उसने कंसोल किया, उसने तीमारदारी की, कंसोल्टेड तीमारदारी की जख्मी आर्मी के जख्मी फौजियों की, एंड सिक सोल्जर्स, और जो बीमार फौजी थे उनकी भी मदद की, ठीक है। क्रीमियम वॉर। अब क्रीमियम वॉर जहां पर आया है ये आप मार्कर से लिखेंगे। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जहां पर लिखा हुआ है वो मार्कर से लिखेंगे। हर पैराग्राफ की पहली लाइन जो है वो आप मार्कर से लिखेंगे, ठीक है, फॉर द बेस्ट इंप्रेशन। गेटिंग माई पॉइंट? आप लोग आउटलाइंस लिखते हैं, आउटलाइंस में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे आपने उसको मार्कर के साथ हाईलाइट करना है, ठीक है। आप लोगों ने बना ली, वो क्या बना ली? आउटलाइंस बना ली, ठीक है। तो उसमें पेन से लिखेंगे, जो इंपॉर्टेंट चीज होगी वो मार्कर से लिखेंगे। उसके बाद आप आ जाए पैसेज पे। पैसेज का जब आप स्टार्ट लेते हैं, फर्स्ट लाइन लिखते हैं वो मार्कर से लिखेंगे, बाकी सारा पैसेज पेन से लिखेंगे। लेकिन अंदर जो इंपॉर्टेंट फ्लोरेंस नाइटिंगेल आ गया है, नर्सिंग एज अ प्रोफेशन आ गया है, काइंड हार्टेड आ गया है, क्रीमियम वॉर आ गया है, ये सारी चीजें जो है वो मार्कर से हाईलाइट करते जाएंगे आप लोग। ठीक हो गया? She controlled a large army of wounded sick soldiers. Her selfless service. देखिए, अब बेलोस खिदमत को कहती हैं सेल्फलेस सर्विस। ठीक है, सेल्फलेस सर्विस हो गया। हर सेल्फलेस सर्विस कहते हैं बेलोस खिदमत देती हैं। मेड द प्रोफेशन ऑफ नर्सिंग अ नोबल कैरियर फॉर गर्ल्स, और कहती हैं इसने ही जो है इसको बेलोस खिदमत, बेलोस खिदमत जो कि बहुत ज्यादा सेल्फलेस सर्विस, अपने आप को इंसान खत्म करके जो किसी की खिदमत करता है। मेड प्रोफेशन ऑफ नर्सिंग अ नोबल कैरियर फॉर गर्ल्स, उसने नोबल प्रोफेशन बना दिया है गर्ल्स को। इसमें ज्यादा गर्ल्स ही एंटर होती हैं, बॉयज कम एंटर होते हैं, ठीक है। अब बॉयज नर्सिस, मेल नर्सिस भी जो है वो, बॉयज नर्सिस कह रही हूँ, मेल नर्सिस भी जो है इसमें आना शुरू हो गई हैं। लेकिन मेल नर्सिस में क्या होता है कि मेल नर्सिस, अभी तो गवर्नमेंट जॉब भी आ गई है ना मेल नर्सिस की, इस वजह से अब मेल ज्यादा आया करेंगे यहाँ पर। और अल्लाह खैर करे, अभी आप लोगों का जो है, आप लोगों का तो चले सेशन चल ही रहा है ना, ये शारदा टीचिंग हॉस्पिटल में एक से 100 बॉयज की ही सीट्स आई थी।
तो इससे मेल नर्सिस जो हैं वो अब ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है। तो अली हमजा ने, अदील ने और तौसीफ ने और क्या नाम है, साकिब, अदील, अली हमजा, तौसीफ और पांचवा लड़का था, अ, अ, सोचने दे मुझे उसका नाम, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है मुझे। लैम्बल is the second name and first name is, I don't know what is the first name of Lambel. Her sister is also my student. Her name is Yasmin Lambel. Yes, Khushnoor Lambel. Yes, Khushnoor. ओके बच्ची, आप ये ना कहें कि मैडम लड़कों के नाम आपको याद हो गए हुए हैं, वो यहाँ पर तौसीफ की और उसकी अटेंडेंस चल रही थी अदील की। इस वजह से गर्ल्स के भी मुझे नाम याद ही है। खुशनूद लैम्बल, ठीक है जी, खुशनूद लैम्बल। ठीक है, ये 5 बॉयज जो हैं ये तो मुझे बना के भेजेंगे ना असाइनमेंट मेल्स वाली, जिसमें मेल नर्सिस का भी जो है वो ऐड होगा, ठीक है। ये क्या बल्कि सारी क्लास ही लिखेगी, जो गर्ल्स हैं वो भी लिखेंगे, ठीक है। अच्छा बच्चे जाग गए, मेरा ख्याल था सो गए होंगे बच्चे। लेकिन गुड, शाबाश, वेरी गुड, ये जाग रहे हैं। एनी हाउ जी, आगे बढ़ना शुरू करते हैं। अच्छा मैं बात क्या कर रही थी पता नहीं मैं, हाँ जी, कि मेल नर्सिस भी जो हैं वो आना शुरू हो गए हैं हमारे पास स्टूडेंट्स। मेरे ख्याल से हमारा ही कॉलेज था जो कि ऑफर कर रहा था मेल स्टूडेंट्स के लिए भी, ठीक है। तो ये मेल नर्सिंग जो है ये यहीं से शुरू हुई है, ठीक है। पहले तो बेचारों के पास जो है वो हुआ ही नहीं करती थी। ठीक है, मेल नर्सिस का शुक्र है वो एक एक जितने जो है वो प्राइवेट कर रहे हैं, साथ ही वो गवर्नमेंट भी कर रहे हैं, वो कौन सा रह गए, वो डबल डबल ड्यूटी करके डबल डबल अर्निंग कर रहे हैं। तो आप लोग भी बेटा पढ़ा करें, ठीक है। ओके, द इंडो पाकिस्तान वॉर वॉज शोन दैट एवरी मुस्लिम वुमेन शुड हैव ट्रेनिंग इन नर्सिंग। कहते हैं इंडो पाकिस्तान की जब जंग हुई थी, पाकिस्तान और इंडिया की जब जंग हुई थी, है सुन उसने दिखाते था दैट एवरी मुस्लिम वुमेन शुड हैव ट्रेनिंग इन नर्सिंग, के हर औरत की जो है वो होनी चाहिए ट्रेनिंग नर्सिंग में, उसे नर्सिंग आनी चाहिए। नर्सिंग एंड फर्स्ट एड शुड बी मेड कंपल्सरी सब्जेक्ट इन ऑल कॉलेजेस। कहते हैं नर्सिंग को और फर्स्ट एड को लाजमी हिस्सा बना देना चाहिए, लाजमी सब्जेक्ट करा देना चाहिए इन ऑल कॉलेजेस एंड स्कूल, हर स्कूल और कॉलेज में। यहाँ हर और स्कूल और कॉलेज में जो है बिल्कुल भी नहीं दिया जाती इंपॉर्टेंस। फर्स्ट एड होती क्या है कुछ पता ही नहीं है, नर्सिंग होती क्या है बेसिकली कुछ पता ही नहीं है। ये सारी सूरत हाल यहाँ पर चल रही है, तो किस तरह से हम लोग जो है वो उनको दे दें। ओके जी, nursing and first aid should be made compulsory subjects in all colleges and schools. We should also try to rise the status of nurses in our country। और कहते हैं हमें जो है इसके नर्सिस के स्टेटस को जो है बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए इन आर कंट्री, अपने कंट्री में। द लाइफ ऑफ अ हॉस्पिटल नर्स इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, लाइफ इन अ लाइफ फॉर अ नर्स इन अ हॉस्पिटल, ऐसा ही है। The life of a hospital, नहीं, the life of a nurse in a hospital is not a bed of roses. The life of a hospital nurse, अच्छा hospital nurse लिख दिया उसने, ठीक है। The life of a hospital nurse is not a bed of roses। कहते हैं हॉस्पिटल नर्स जो है उसकी जिंदगी फूलों की सेज नहीं है बेचारी की, वो बड़ी जाहिर सी बात है। मैं आज यही सोच रही थी जब मैं सुबह व्हेन आई हैव लेफ्ट माय हाउस, जब मैं घर से निकली हूँ तो उस वक्त जस्ट आई वाज थिंकिंग अबाउट दैट आई एम नॉट अ नर्स बट आई एम द टीचर ऑफ नर्सेस। हाउ is it impossible, not impossible, but how is it difficult to manage the duty being a nurse? Even what is your mood and what is your self condition, but you are ready to take the charge as a nurse and you are going to treat the other patients. How much is it difficult for a female and as well as for a man? Just I'm thinking, I don't know why I was thinking about the profession of nursing. ठीक है, but I am thinking about that how much is it's difficult that if you are feeling sick,
If you are not in the mood, in the good mood, but you are going to treat the patients, and I don't know how kind of patient you are going to treat. ठीक है, जिस तरह अभी कोरोना के पेशेंट्स देख लें, तो एक घर से जब एक कोरोना के पेशेंट्स को पता है कोरोना वार्ड में ड्यूटी लगी हुई है, तो जब जाएंगे तो कितना मेंटल स्ट्रेस होगा उनके ऊपर, ये देखें। तो अलीजा शौकत कह रही है मैं बस आपको ही हमारा ख्याल है, नहीं हमारा, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल नर्सेज, ठीक है। इसी तरह से डॉक्टर होता है, डॉक्टर ने चले जी थोड़ा सा ट्रीट किया, देखा क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, प्रिस्क्रिप्शन बनाए और फारिग हो गए, ठीक है। लेकिन इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ नर्स। मैं बीइंग जो है टीचर, जस्ट सोच रही थी इन सब चीज़ों को, ठीक है, कि कितना डिफिकल्ट होता है ना ये सारी चीज़ें इस तरह से मैनेज करना, और मुश्किल हो जाता है ये सारा कुछ इस तरह से। लेकिन देखें अल्लाह ताला ने जो है ये भी मेरा ईमान है कि अल्लाह ताला ने जो है नर्सिंग प्रोफेशन के लिए और बाकी सब प्रोफेशन के लिए चुना होता है ना इंसानों को, कि किसके लिए क्या है, किसी को डॉक्टर बनाना है, किसको इंजीनियर बनाना है, किसको नर्स बनाना है। फिर आपका मूड, आपका बॉडी स्ट्रक्चर, ईच एंड एवरीथिंग अल्लाह ताला वैसे बना बना के भेजते जाते हैं, चलो भाई इसने नर्स बनना है, इसने इंजीनियर बनना है, इसने टीचर बनना है। तो जिस तरह मेरा मूड जिस तरह का भी हो, लेकिन आई वॉज ऑलवेज इन द मूड दैट फ्रेश ही हो स्टूडेंट्स के साथ, और एक अच्छा इंट्रैक्शन हो, एक बहुत सक्सेसफुल जो है लेक्चर हो मेरा स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है। तो अपने मूड को, अपनी हेल्थ को, हर चीज को हम लोग पीछे रख देते हैं। इसी तरह से फिर नर्सेज भी कर लेती होंगी, जाहिर सी बात है। ठीक है, अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे बच्चों, आप लोगों को कामयाब करे, लेकिन कामयाबी के लिए एजुकेशन और दिल लगा कर पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। मैं आप लोगों को यही कहूंगी, और आप लोग इंशाल्लाह इंशाल्लाह पढ़ते भी हैं, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन जो है पढ़ा करें आप लोग, ठीक है। फिर ही आप लोग किसी मुकाम पे पहुंचेंगे, और दुआ करेंगे कोविड-19 जो है कोरोना जल्दी से हमारे मुल्क से चला जाए, बल्कि तमाम दुनिया से ही चला जाए, ठीक है। यानी हाँ आगे पढ़ना शुरू करते हैं। द इंडो पाकिस्तान वॉर हैज शोन, अच्छा ये हो गया था। द लाइफ ऑफ अ हॉस्पिटल नर्स इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज। बेड ऑफ रोजेज से देखें बात कहाँ की कहाँ पहुंच गई है, ठीक है। इन फैक्ट टूडे एवरी जॉब इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, ठीक है। हर जॉब करना ही जो है बेड ऑफ रोजेज नहीं है, हर जॉब करना ही बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया हुआ है, और कोरोना के दिनों में तो खास तौर पे मुश्किल हो गया हुआ है। इसलिए कि जॉब्स है ही नहीं है, जाहिर सी बात है, ठीक है। ओके जी, द लाइफ ऑफ अ हॉस्पिटल नर्स इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, इट इज हार्ड एंड ऑफन टायरसम। कहते हैं ये मुश्किल भी है और थका देने वाली भी है। शी हैज टू अटेंड द हॉस्पिटल फॉर अर्ली मॉर्निंग, कहते हैं वो सुबह सुबह हॉस्पिटल में जाते हैं। कौन सुबह सुबह हॉस्पिटल में जाते हैं? ऑफ कोर्स नर्सिस हॉस्पिटल में जाते हैं एट अबाउट नून, और दोपहर में शी गेट्स अबाउट एन आवर फॉर रेस्ट एंड लंच। कहते हैं दोपहर में उनको सिर्फ 1 घंटा मिलता है कि ये जो है रेस्ट कर सके और लंच कर सके। अगेन दोबारा से शी इज ऑन ड्यूटी टिल इवनिंग, वो शाम तक ड्यूटी करती हैं। देन शी गोज होम और फिर घर चली जाती है। यहाँ थोड़ा सा मैं डिसएग्री करती हूँ इनके साथ, क्योंकि एट अबाउट नून दोपहर में ऐसा नहीं होता, वो तो शिफ्ट होती है ना, मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट एंड नाइट शिफ्ट, मेरे ख्याल से तो यही नाम है। मॉर्निंग इवनिंग एंड नाइट होती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जो मॉर्निंग में आई होती है वो इवनिंग में नहीं होती। हाँ समटाइम्स डबल ड्यूटी, क्या होल डे ड्यूटी भी लग जाती है, मॉर्निंग टिल नाइट, ठीक है। तो 24 आवर्स ड्यूटी भी लग जाती है। लेकिन ये है कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि दोपहर को बस 1 घंटा मिलता है उनको आराम करने के लिए, सांस लेना मुश्किल हो जाता है ना, इसलिए। अच्छा जी, अगेन शी इज ऑन ड्यूटी टिल इवनिंग, देन शी गोज होम, और फिर वो घर चली जाती है, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा आपने ऐड भी करना है कि देयर आर 3 ड्यूटीज, दे आर गोइंग टू बी 3 ड्यूटीज। देखा, शिफ्ट्स के यही नाम होते हैं। अब इतना तो मुझे नर्सिस को पढ़ा पढ़ा के पता चल ही गया है कि शिफ्ट्स के यही नाम होते हैं और यही होने भी चाहिए। ठीक है। अच्छा जी, आगे क्या है? वाइल शी इज इन हॉस्पिटल, कहते हैं जब वो हॉस्पिटल में होती हैं, शी हैज टू परफॉर्म मैनी ड्यूटीज, वो बहुत ज्यादा ड्यूटीज परफॉर्म करती हैं। शी रजिस्टर्स द टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट पेशेंट्स इन दियर रिस्पेक्टिव चार्ट्स, वो चार्ट्स बने हुए होते हैं ना आप लोगों के पास, तो उन चार्ट्स के ऊपर जो है वो डिफरेंट पेशेंट्स का जो है वो रजिस्टर करती हैं। उसके ऊपर उन्होंने सारा उनका फीवर रजिस्टर करना होता है, ब्लड प्रेशर रजिस्टर करना होता है, उसकी जो है प्रेजेंट कंडीशन क्या है वो रजिस्टर करनी होती है।
है, पूरा चार्ट बनता है ना। ये भी मैंने कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की हैं, जिसे गोला चार्ट भी कहते हैं मेरे ख्याल से। आपकी नर्सिंग लैंग्वेज में गोला चार्ट कहते हैं, आप इंग्लिश में पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता उसको, बस ये कहते हैं उसको, रजिस्टर्ड चार्ट कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, उर्दू में तो गोला चार्ट कहते हैं। और रेड रेड पेन से रखा होता है, रेड रेड पेन से ऐसे ऐसे करके वो बनाई जाती है। ठीक है, डिफरेंट पेन इन देयर रिस्पेक्टिव चार्ट्स, देन शी प्रिपेयर्स मेडिसिन, फिर वो प्रिपेयर करते हैं मेडिसिन को, एडमिनिस्ट्रेट्स देम टू डिफरेंट पेशेंट्स, और फिर डिफरेंट पेशेंट्स को देखती हैं, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन करती हैं। शी आल्सो गिव्स इंजेक्शन टू सम पेशेंट्स, और वो कुछ पेशेंट्स को जो है वो इंजेक्शन भी देती हैं। एंड शी अटेंड्स टू एवरी पेशेंट केयरफुली, और हर पेशेंट को बहुत केयरफुली। गोला मार्किंग, तो मैं क्या कह रही थी, मैं गोला मार्किंग नहीं कह रही थी, मैं कुछ और कह रही थी क्या? गोला मार्किंग, हाँ ठीक है, गोला गोला मार्किंग। ये गोला मार्किंग क्या होता है वैसे? हाँ, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, देखा ना, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। मोहम्मद साकिब रियाज, वेरी गुड। आप लोगों ने खबर था गोला मार्किंग का? ये गोला मार्किंग उर्दू का वर्ड है कि इंग्लिश का? मार्किंग तो इंग्लिश का, तो गोला गोला पता नहीं अब कौन सा वर्ड है, गोला मार्किंग। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है कि रजिस्टर चार्ट प्रेजेंटेशन, प्रिपेयर मेडिसिन एंड एडमिनिस्ट्रेट देम रिस्पेक्टिव चार्ट लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, मोहम्मद साकिब रियाज, सबने अब ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बोलना है। ठीक है, लेकिन मुझे ये भी तो बताएं, गोला मार्किंग उर्दू का वर्ड है कि इंग्लिश का? एक गोला वही है जो छोटे छोटे सर्कल्स बनाते हैं, उसे वो कहते हैं फिर गोला मार्किंग? ये मुझे नहीं वैसे पता, लेकिन मैंने देखा हुआ बच्चों, ऐसी बात नहीं है कि मैंने नहीं देखा हुआ। ठीक है, while she is in hospital she has to perform many duties. She registers the temperature of different patients in their respective charts, then she prepares medicines and administrates them to different patients. She also gives injection to some patients, वो कुछ patients को injection भी देती है। She tends to every patient carefully, हर patient को बहुत carefully तरीके से, बहुत ज्यादा मुहतात अंदाज में जो है वो करती है, क्या करती है, अटेंड करती है। She also to live among groans and cries, और यहाँ तक कि वो बिल्कुल उसे रहना पड़ता है, वो रहती भी है among groans, कि उसमें आहें और रोने धोने के दरमियान हर वक्त वो बेचारी रहती है। ठीक है, इसमें बड़ा अच्छा था, कोटेशन बड़ी अच्छी थी इसमें। द नर्स इज द वन who open the eyes of newborn and close the eyes of the dead patient। ठीक है, इस तरह की कोई इससे मिलती जुलती ही कोटेशन है। ठीक है, तो ये आपने ऐड जरूर करनी है। ये आप देख लीजिएगा कि है इसकी, नर्स इज अ पर्सन हु ओपन द आईज ऑफ न्यू बोर्न एंड क्लोज द आईज ऑफ द डेड पर्सन। ठीक है, ये इस तरह के कोटेशंस आप लोग ने बहुत अच्छी अच्छी सी ऐड करनी है। रोल लाइक यूजुअल राउंड इन द वार्ड, वो कहते हैं जब डॉक्टर जो है वो आता है राउंड करने के लिए आपकी वार्ड का, शी हैज टू अकम्पनी हिम, तो वो उसको कंपनी देती है। ठीक है, ही और शी भी लिख सकते हैं आप लोग, कि उसको पूरी पूरी कंपनी देती है, उसको बताती है कि किस पेशेंट की क्या कंडीशन रही है, किसको मेडिसिन से रिएक्शन हुआ है, किसको नहीं हुआ। शी सप्लाइज नेसेसरी इंफॉर्मेशन अबाउट ईच पेशेंट टू द डॉक्टर, और जितनी भी पेशेंट डॉक्टर को पेशेंट के मुतालिक इंफॉर्मेशन चाहिए होती है जरूरी, वो सारी उसको मुहैया करती है। सप्लाईज का वर्ड देखें कितना अच्छा है यहाँ पर। इन्फॉर्म भी आ सकता था। एंड कैरीज आउट हिज ऑर्डर्स, और उसके ऑर्डर जितने भी होते हैं उसको वो कैरी आउट करती है, कि उसके ऑर्डर्स को जो है वो पूरा करती है। एट टाइम्स, और इसी दौरान द डॉक्टर बिकम्स एंग्री, डॉक्टर नाराज हो जाते हैं। शी हैज टू हियर इट कॉल मी। अच्छा, अगर कहते हैं कि किसी वक्त जो है डॉक्टर अगर नाराज भी हो जाता है ना, ठीक है, तो डॉक्टर नाराज कह रही हूँ, किसी बात पे डॉक्टर को तो गुस्सा आ ही जाता है ना ड्यूरिंग राउंड जो है। ठीक है, उनको गुस्सा आ जाता है, तो वो क्या करती हैं कि इट बिकम्स एंग्री, वो एंग्री हो जाता है, नाराज हो जाता है गुस्से में। एंड शी हैज टू हियर इट कॉल मी, और वो बहुत आराम से फिर जो है वो सबका
क्या कर रही होती है, बहुत सुकून से उसकी बातें सुन रही होती है। कभी डॉक्टर और नर्स की लड़ाई हुई है हमारे, आप लोग ना थर्ड ईयर में इंसिडेंट रिपोर्ट पढ़ेंगे, और इंसिडेंट रिपोर्ट पढ़ने का और करने का बहुत मजा आता है। एक इंसिडेंट जो है वो आपको दे दिया जाता है, उस इंसिडेंट के थ्रू जो है वो सारा चीजें जो है वो इंसिडेंट रिपोर्ट में लिखनी होती है। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है, एट टाइम द डॉक्टर बिकम्स एंग्री एंड शी हैज टू हियर इट कॉलनी, कि वो बहुत आराम से जो है वो उसका सारी बातें सुनती है। कौन? अ नर्स। ठीक है जी। अब इसमें आप लोगों ने स्टूडेंट्स अपनी कोटेशन ऐड करनी है, और कोटेशन जो है वो नर्सिंग एज अ प्रोफेशन के ही रिगार्डिंग जो है वो मुतल्लिक होनी चाहिए। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल का बहुत अच्छा सा आपने एक ऐसे भी प्रिपेयर करना है फ्लोरेंस नाइटिंगेल के लिए, और साथ में उसकी कोटेशंस भी ऐड करनी है। हर ऐसे में जो है वो कोटेशंस लाजमी लाजमी होनी चाहिए। मैंने आप लोगों को पहले भी ये सारी चीजें बताई हुई हैं, टाइम बाय टाइम रिपीट इसलिए करती रहती हूँ ताकि आप लोग जो है आप लोग के माइंड में रहे कि हम लोगों ने ये काम करना है। ठीक है, इसको मैं गूगल क्लासरूम पे कर दूंगी, जो है अपलोड कर दूंगी। ठीक है, और फिर इसके रिगार्डिंग आप लोगों ने जो है एक कंप्लीट ऐसे बनाना है। कंप्लीट ऐसे करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, ऐसे कंप्लीट करके इसमें कोटेशंस ऐड करके फिर आप लोग मुझे सेंड करेंगे, फिर मैं आप लोगों को उसका जो है वो चेक करके आपको बता दूंगी। ठीक है जी। अच्छा जी, नाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर essay nursing as a profession. If you want to ask any question, then you have uh, how many time? 7 minutes. Okay. If you want to ask any question, I don't want to listen. No, ma'am. Is it clear? ठीक है, आप नहीं सवाल पूछेंगे तो फिर मैं आपसे नर्सिंग प्रोफेशन के मतलब सवाल पूछ लूंगी। ठीक है, जिस तरह अभी जो है वो अभी गोला मार्किंग का पूछा है कि गोला मार्किंग को इंग्लिश में क्या कहते हैं, और ये उर्दू का वर्ड है कि इंग्लिश का वर्ड है, गोला और मार्किंग। तो आगे से बच्चों ने कहा है कि बबलिंग करनी होती है ना ग्राफ पे। अच्छा, एक्चुअली ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को रॉन्ग वर्डिंग में गोला मार्किंग कहते हैं, हालांकि गोला मार्किंग जो है वो राइट वर्ड है इन आवर सोसाइटी एंड इन आवर हॉस्पिटल्स। सरगनी यहाँ पर बैठे हुए हैं, सरगनी से पूछ लेते हैं। जी सरगनी, जी गोला मार्किंग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं। अच्छा, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ही करते हैं। ठीक है जी, आपके सर ने भी कह दिया। उसी को जब हम लिंक कर लेते हैं तो हॉस्पिटल में स्टाफ से गोला मार्किंग होती है। तो मैं बच्चे से पूछा मार्किंग तो इंग्लिश का वर्ड हो गया, तो ये गोला क्या है? तो आगे से कहते हैं मैडम ये उर्दू का नहीं है, पंजाबी का ही वर्ड है। पंजाबी में जो है उसको कहते हैं। अच्छा जी, ग्रेट लाइंस मैम, ये कौन सी ग्रेट लाइंस लग गई हैं बच्चों? मैंने आपको पूछा कि आप लोग क्वेश्चंस करें और आप लोग आगे से कहते जा रहे हैं ग्रेट लाइंस मैम। वाइना को बहुत जल्दी है खुदाफिज कहने की, अभी खुदाफिज नहीं कहना, क्वेश्चन करें आप लोग नर्सिंग एज अ प्रोफेशन के मुतालिक, और मुझे जल्दी से जो है। अच्छा, ये लाइंस मेरे ख्याल से जो मैंने कोटेशन बताई है अबाउट नर्सिंग प्रोफेशन, वो वाली लाइंस कह रही हैं आप? तो जो है कोटेशंस भी देखें और मुझे बताएं जल्दी से। इफ यू वांट टू आस्क एनी वर्ड, द मीनिंग ऑफ वर्ड, एनी लाइन, कुछ भी जो समझ नहीं आया आप लोग पूछें। जी रीड, आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स। रीड कर लें इसको, जो चीज नहीं समझ आती वो पूछे मेरे से।
जी स्टूडेंट्स, मैंने आपको टाइम दिया हुआ था पढ़ने के लिए कि आप इसको रीड करें, और इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, एनी स्पेलिंग, एनी मीनिंग और एनीथिंग एल्स, बट देयर इज नो एनी क्वेश्चन। बिल्कुल जी नहीं, लेक्चर ओवर नहीं हुआ। आपको कैसे पता जी लेक्चर ओवर हो गया? अभी आप लोगों का आज मेरे ख्याल से टेस्ट भी होगा, फिर टेस्ट भी आप लोगों ने देना होगा। 2 to 3 होता है शायद टेस्ट आप लोगों का, ठीक है? तो जो है आप लोग तैयारी करें अच्छी सी, इंग्लिश की भी जो है तैयारी करें अच्छी सी। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मैंने आप लोगों को टॉपिक बता दिया है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही आप लोगों का टेस्ट होगा। वो किस तरह से होता है, एमसीक्यूज होते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होते हैं, वो मैं आपको थर्सडे के लेक्चर में सारा बता दूंगी कि किस तरह से आप लोगों ने प्रिपरेशन करनी है। लेकिन ये डन है कि आप लोगों ने उसको रीड अच्छी सी करना है डेफिनेशन को, ठीक है? जो है उसको पढ़ना अच्छा से है, और लर्न भी बहुत अच्छा सा करना है उसने, ठीक है? और विद 5 एग्जाम्पल्स होनी चाहिए उसकी। और एग्जाम्पल्स भी बस ऐसी ही नहीं होनी चाहिए कि जो मर्जी उठा के लिख दी दिस एंड दैट वाली। अच्छी सी ऑथेंटिक सी लिखनी है आप लोगों ने। हाँ जी बिल्कुल, पार्ट्स ऑफ स्पीच में हर पार्ट की ऑफ कोर्स डेफिनेशन होगी, नाउन प्रोनाउन हर एक की डेफिनेशन लिखनी है आप लोगों ने बच्चों। नहीं, फर्दर काइंड्स नहीं करनी। नाउन प्रोनाउन और जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच है, सिर्फ उनकी अभी डेफिनेशन का आपका टेस्ट होगा। काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन और वो काइंड्स ऑफ वर्ब की तरफ अभी हम नहीं जा रहे हैं, ठीक है? तो सिर्फ ऐसे कोई जो है लेसन से मुतालिक सवाल नहीं पूछता, और इस तरह के सवाल पूछे जाता है। जी रुशना कवर ने बहुत अच्छी कोटेशन लिखी है, गुड। ये तो मसला है, क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नहीं है। तो सिर्फ कहते हो कि मैं चलिए ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, टेक बेस्ट केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप रिमेंबर अस इन योर प्रेयर्स। हाँ जी, अल्लाह हाफिज़। मैम भी आपको अल्लाह हाफिज़ ही कहने लगी हैं। आप लोग भी अब खाना वाना खा लें, फ्रेश हो जाओ, टेस्ट की प्रिपरेशन करें नमाज पढ़ने के बाद, ठीक है? तो जो है आप लोगों ने अच्छा सा जो है वो टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है। जो भी टेस्ट डेली बेसिस पे हो रहे हैं आप लोगों को साथ साथ ही उसके रिजल्ट भी मिलते चले जाएंगे, ठीक है जी? ओके जी, टेक बेस्ट केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।